Hello students, good morning. Today in this class of tense part 3, we are going to learn or see the negative sentences of present indefinite tense or simple present tense. Dear students, in negative sentences we require nahi, 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 do not, does not, especially in simple present tense or present indefinite tense. The formula is given here for simple present tense or present indefinite tense when we make the sentences negative. The formula is subject plus do oblique does plus not plus first form of the verb and then naturally object, if object is there, but object is required in the formula. Rules are given here, dear students, that if the subject is third person singular number, he, she, it, ram, table, chair, mango, etc., we use does. Do and does are helping verb, dear students. And when the subject is I, we, you, they are plural number, when the subject is I, we, you, they are plural number, at that time we use the helping verb do. So simple are the rules. We can say the rules are very simple with some examples here. Dear students, for the presentation and to make the presentation comfortable and convenient for you, especially the writing, dear students, to make comfortable, I have written the examples already. Our ready-made examples are here, but we will explain, I will explain all the examples so that you may be able to learn and adjust whatever I have been teaching. The example is, he dash not use black pen. As per the subject, we are having here subject he. As per the formula we should say, according to formula we should say subject is he. एंड विच हेल्पिंग वर्ब शुड वी यूज़ हियर, कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे यहाँ, तो हमारे पास रूल लिखा है कि जब हमारे पास इफ़ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, राम, टेबल, चेयर, मैंगो एक्सेट्रा, वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब डज. सो हियर वी शैल यूज़ डज. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, रीता डैश नॉट लाइक बनाना. रीता is the subject. Use do or does. The choice is here, but do or does we shall use. हम use करेंगे according to our subject. रीता, मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं है, वो कोई और है. जब वो कोई और है that means थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है रीता. और वैसे भी हम यहाँ आपके पास टेबल बना हुआ है, इसमें यदि ढूंढ ले कहीं रीता को तो ही, शी. रीता is obviously she. So with she we shall use again does. So again the helping verb does. Not use only and only first form of the verb such as use, like. Now see the third example. We does not play cricket. Subject is we, and with subject we, what is the helping verb should be used by we? That is, if the subject is plural number, I, we, you, they, we use the helping verb do. So here we shall write the helping verb do. Now students, we try to translate some Hindi examples into English. वह चाय नहीं बनाती है. वह चाय नहीं बनाती है. एक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? बनाने का. What is the action is going on? That is बनाना. बनाना, मैक, प्रिपेयर. नॉर्मली ईटेबल्स को हम प्रिपेयर बोलें तो ज़्यादा बेहतर होता है स्टूडेंट्स, ठीक. तो प्रिपेयरिंग, व्हाट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड हियर? चाय. एंड हु इज़ प्रिपेयरिंग? सी इज़ प्रिपेयरिंग, वह इज़ प्रिपेयरिंग. तो वह सब्जेक्ट फार्मूला जो कह रहा है वो सब हम करते चलेंगे. यह कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है हमारा? वह. जो भी है ये वह तो है, ये सब्जेक्ट है हमारा वह. ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है वह, दैट इज शी. नाउ फार्मूला इज सेइंग टू राइट डू और डज. तो वी हम जानते ही है बच्चों, वी नो इट
that if the subject is he, she, eat, Ram, table, chair, mango, etc. at that time we use the helping verb does. यदि आप ऐसा बोले कि if the subject is third person singular number, at that time we also use does. So here we have written does and formula is saying write not. So we have written here not. There is no rule, there is no what to say, कुछ formula नहीं है, not है तो not है. And he is saying to write first form of the verb. So the first form of the verb is, what is the verb here? Prepare or make. So normally we use here prepare. तो what is being prepared? That is tea. तो वर्ब से जब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बनाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या उड़ाया जा रहा है, वर्ब जैसी होती है उसके हिसाब से हम प्रश्न पूछ लेते हैं. तो what answer we get, that is our object. तो object is tea. तो she does not prepare tea. Now the next example is, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं. कौन? हम. We is the subject. So as per the formula is asking to write subject. Subject यदि हम ढूंढने चलते हैं, यहाँ एक बार और ढूंढ लेते हैं. एक्शन क्या हो रही है? खेलने की. अब कौन खेलते हैं? हम बोला तो आप समझते हैं, हम बोला तो we होता है. तो we is the subject as per the formula subject we. हम. तो we have written here we. अब फार्मूला कह रहा है कि डू या डज लिखो. तो डू या डज बोला तो वी यानी कि हम और वी के साथ में हम यूज़ करते हैं, आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हम डू यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर डू लिखा है. नॉट फार्मूला में ही लिखा है तो नॉट को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है. देयर इज़ नो मंत्रा टू राइट वेयर टू राइट एंड वेयर नॉट टू राइट एंड हाउ टू राइट एंड हाउ कैसे कर लें. तो नॉट है तो नॉट है. नाउ द वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ प्ले. खेला क्या जा रहा है स्टूडेंट्स? फुटबॉल. तो दैट इज ऑब्जेक्ट एंड फुटबॉल इज हियर. तो सी डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. मेरा मित्र पतंग नहीं उड़ाता है. एक्शन क्या हो रही बच्चों? व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन हियर? दैट इज उड़ाना, फ्लाई. ठीक है. तो फ्लाई इज द वर्ब एंड क्या कौन उड़ा रहा है? मेरा मित्र. तो माय फ्रेंड क्या होगा बच्चों हमारे पास? सब्जेक्ट. मेरा मित्र, माय फ्रेंड. यहाँ पर ब्लैंक रख रखा था बच्चों. क्या रख रखा था? ब्लैंक किस लिए रखा था? कि हमें यहाँ पर फिल करना है अभी क्या लिख लें हम यहाँ. तो हमारा सब्जेक्ट चूंकि मेरा मित्र है और इंग्लिश में होता है वो माय फ्रेंड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों माय फ्रेंड. माय फ्रेंड. अब मेरा फ्रेंड मैं भी नहीं है, आप भी नहीं है, तुम हो. तो मेरा फ्रेंड हुआ ही या सी होगा तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे डज. तो हमने लिख दिया यहाँ पर डज. अब फार्मूला बोल रहा नॉट तो आप लिखेंगे नॉट. अब फार्मूला इज सेइंग अगेन कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो एक्शन क्या हो रही है बच्चों यहाँ पर? उड़ाने की. तो पतंग को फ्लाई ही करते बच्चों अपन. तो FLY फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड क्या उड़ाया जा रहा है? व्हाट इज बीइंग फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन. व्हाट इज बीइंग फ्लोन? तो हम पतंग उड़ा रहे हैं. दैट इज अवर आंसर. देन दैट आंसर इज अवर ऑब्जेक्ट दैट इज काइट. अगेन एक एग्जांपल देख लेते हैं. वे नदी में नहीं तैरते हैं. तैरने की एक्शन हो रही है बच्चों. ठीक है. तैरने की एक्शन हो रही है. तो कौन तैर रहे हैं, कौन नहीं तैर रहे हैं? वे बोला तो दे डू या डज. अब आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ आपके पास डू लिखा है. डू का यूज़ होता है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे डू. नॉट फार्मूला, नॉट वर्ब. एक्शन क्या हो रही है? स्विम. तैरने की क्रिया हो गई है ये स्विम. किधर तैरते, किधर नहीं तैरते? तो नदी में नहीं तैरते तो इन द रिवर. अब बच्चों इन द रिवर, इनटू द रिवर वाला हम कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन में देख लेंगे. बाय द वे, इफ समथिंग इज ऑलरेडी इनसाइड द फोर वॉल्स दैट इज इन. वो ऑलरेडी नदी में तैर रहा है दैट इज़ इन. यदि वो बाहर से जंप करता है नदी में तो वी शैल यूज एट दैट टाइम इनटू. बच्चों इसमें कोई भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मेल कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिए कहीं तो भी यहाँ डाउट है तो. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.